نے بہت اچھا کیا. تو یہ 19 ہیں جنہوں نے 5 پارے ڈیلی سنائے. اور سبحان اللہ اسی نشست میں اس طرح کی ایک ہی نشست میں قرآن شریف کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو کھانا کھلانے والے مبارکباد کے قابل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کپڑے پہنانے والے مبارکباد کے قابل ہیں. سبحان اللہ یہ محترم ہوئے ہیں قرآن کی وجہ سے. سبحان قرآن اللہ کوئی آسان کتاب نہیں. سبحان اللہ قرآن جناب والا کوئی معمولی کتاب نہیں. قرآن اللہ کی قسم ہے کہ کسی بندے کا کلام نہیں اللہ ہی کا کلام ہے. اور اس اللہ کے کلام کو ان کے سینوں نے اپنے اندر اتار لیا. یہ بڑی بات ہے. جن جو سینے اللہ کا قرآن جناب والا اپنے اندر نقش کر لیں خدا کی قسم وہ ہمارے لیے نہیں اس زمین کے لیے اس آسمان کے لیے اس سنسار کے لیے احترام کے قابل ہیں. سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اپنا وقت پورا کر لیں گے اور رحمت خدا کی طرف جائیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا زمین کو اوحا ربک الی الارض. زمین کو اللہ کا حکم ہے اللہ تأکلی لحمہ حافظ قرآن کا گوشت مت کھانا. سبحان اللہ حافظ قرآن کا گوشت مت کھانا. اس نے میرا قرآن سینے میں لے لیا ہے. میرا کلام ہے اس کے سینے میں. تو زمین کے لیے قابل احترام آسمان پہ ارے جو بوجھ زمین اٹھا نہ سکی جو بوجھ آسمان اٹھا نہ سکا جو بوجھ یہ کائنات اٹھا نہ سکی اس بوجھ کو 10 سال کے سینے نے اٹھا لیا. سبحان اللہ 12 سال کے سینے نے اٹھا لیا. سبحان اللہ 14 سال کا بچہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے. میرا اللہ فرماتا 22 میں پارے میں ارے ہٹ جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. ماشاءاللہ اللہ آباد رکھے آپ کو. بڑی محبت کی. ہار بھی دے دینا اور ہاروں کے ساتھ ساتھ تھوڑا پیسہ بھی دے دیا کرو. ہار دینا آسان ہے پیسہ دینا اتنا مشکل ہوتا ہے. پیسہ کام ہار تو واپس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے توجہ ہے آپ کی. بالکل میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ابھی جیسا نے وہ پھولوں کا حال لیے چلا رہے ہیں جیسے نے وہ پھولوں کا حال لیے چلا رہے ہیں. ارے کیا کرو گے پھولوں کا حال یہ کافی تھا اس کے بارے میں کچھ اور. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام قرآن کی وجہ سے دیا. کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. بہت بھاری کتاب ہے. بہت ہیوی ہے. بہت ہارڈ ہے. میرا اللہ فرماتا قرآن میں 22 پارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بے شک اللہ سبحان اللہ فرماتا ہم نے اس امانت کے بوجھ کو آسمان پہ پیش کیا تو اٹھا لے. آسمان ڈر گئے بولے ہم نہیں اٹھا پائیں گے. زمینوں پہ پیش کیا زمینوں سے کہا تو اٹھا لے. زمینوں نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے. اتنا کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں ہے. ہم نے کہا پہاڑوں تم اٹھا لو. ایک سے ایک بڑا پہاڑ ہمالیہ جیسا پہاڑ خدا کی قسم ابینا انکار کر بیٹھا اور بولا یہ امانت کا بوجھ ہے اللہ ہمارے سینوں اور کلیجوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ تیری اس امانت کا بوجھ ہم اٹھا پائیں گے. مگر اس امانت کا بوجھ اللہ کی قسم سبحان اللہ انسان نے اٹھا لیا. سبحان اللہ زور سے کہیے سبحان اللہ. قرآن شریف اللہ فرماتا اتنا ہارڈ ہے اتنا ہارڈ ہے اتنا ہارڈ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے میرے محبوب اگر ہم اس قرآن کو اس کا ایکو کم کرو بھائی آواز کلیئر کر دو. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتے. ریزہ ریزہ بکھر جاتے. پہاڑ ریتا ریتا ہو جاتے.
ذرہ ذرہ بکھر جاتے اور پہاڑ قرآن شریف کو اٹھا نہیں سکتے تھے. لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اللہ کے خشیت سے پہاڑ بے حال ہو جاتے, پھٹ جاتے. خدا کی قسم اتنی ہارڈ ہے یہ کتاب کہ پہاڑ پھٹ جاتے, سمندر پہ اتار دے, سمندر خشک ہو جاتا. حضرات ہاں مگر جو قرآن اتنا ہارڈ تھا اسے جناب والا میرے مصطفیٰ کے سینے نے جناب والا قبول فرما لیا. ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. اٹھا نہ سکی, آسمان اٹھا نہ سکا, پہاڑ پھٹ جاتے. مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پہ جب یہ قرآن جناب والا نازل ہوا, اس سینے نے مصطفیٰ کے سبحان اللہ اللہ اکبر سارا بوجھ سہا مصطفیٰ کے سینے نے. یہی وجہ ہے اگر ڈائریکٹ اتر جاتا کسی حافظ کے سینے پہ, یہ حافظ 12 سال کا اٹھا لیتا قرآن کو, یہ 14 سال کا حافظ اٹھا لیتا قرآن کو, یہ 50 سال کا حافظ اٹھا لیتا قرآن کو. نو پھٹ جاتے, گر جاتے, تباہ ہو جاتے اور کٹ جاتے اور آدھا بکھر جاتے. وہ تو کام ہے میرے مصطفیٰ کے سینے کا. سبحان اللہ. توجہ ہے, ڈائریکٹ اٹھایا مصطفیٰ کے سینے نے. سبحان اللہ. ان پر تو تجلیاں آئی ہیں, ان پر تو سایہ آیا ہے جناب والا. ڈائریکٹ یہ کام میرے نبی کا ہے. اور خدا کا صرف یہی وجہ ہے کہ جب پہلی بار قرآن اترا تھا حضور پر, سبحان اللہ سبحان اللہ, جب سرکار پر پہلی بار قرآن اترا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کو جاڑا آ گیا تھا. مصطفیٰ پہ کپ کپی تاری ہو گئی تھی. مصطفیٰ لڑکبر اندام تھے, مصطفیٰ کانپ رہے تھے اور کانپتے کانپتے غار ہیرا سے آئے تھے. اور جناب والا پورا جسم ہل رہا تھا. کس کا جسم ہل رہا تھا؟ جناب والا وقت کے سورما کا جسم, بہادروں کے بہادر کا جسم. جناب والا جو کبھی کب کپایا نہیں, کبھی تھرتھرایا نہیں. حضرات محترم جس نے طوفانوں اور آندھیوں کا سامنا جناب والا کیا ہو, خدا کی قسم مردانہ وار مقابلہ کیا ہو, پائے سواد میں کبھی لغزش نہ آئی ہو, جو کبھی کانپا نہ ہو. ایک قرآن کی آیت اتری تو کانپ گئے مصطفیٰ. زور زور کہتے سبحان اللہ. کانپے, ایسے کانپے مصطفیٰ لڑکبر اندام ہو گئے, چہرے کا کلر بدلنے لگا. اور جناب والا اسی حال میں میرا نبی قرآن کی چند آیتوں کو لے کے گھر کے اندر آتا ہے. اللہ پہ جناب والا ہمیں فیض دے اس پیاری خدیجہ الکبریٰ کا جس نے قدم قدم پر نبی کو سہارا دیا, اسلام کو سہارا دیا, دین کو سہارا دیا. آج اسی خدیجہ کا فیضان ہے. سبحان اللہ. چاروں طرف باتیں بہاری چل رہی ہے. وہ پیاری خدیجہ, وہ مبارک خدیجہ, ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. زہرا کی امی جان, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اہلیہ, وہ ہماری اور تمہاری یعنی مومنین کی پیاری پیاری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ. وہ خدیجہ الکبریٰ جس پہ اللہ کا سلام آیا. ذرا زور سے کہیے دنیا کی ایک اکیلی خاتون ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کاش ہماری ماں بہنیں ایسی خاتونوں کو اپنا آئیڈیل مانتی, مگر ہماری ماں اور بہنیں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں, برا مان جائیں گی, کہیں گے عمران حنفی ٹارگٹ ہم ہی کو کرتا ہے, جناب والا کوسیں گے مجھے. مگر میں کہنا چاہتا ہوں حضرات محترم, آج کی عورت نے سب کچھ بھلا ڈالا. ایک موبائل, ایک فیشن کے سامنے عورت سب کچھ بھولی پڑی ہے. جناب والا اسے کچھ یاد نہیں ہے, نہ نمازوں کی شرطیں, نہ نمازوں کے فرض یاد ہیں, نہ اولادوں کی تربیت کے جذبے یاد ہیں. زبانوں پہ گالیاں ہیں, اولادوں کو گالیاں دیتی ہیں, بدتمیزیاں کرتی ہیں. جناب والا اس کے علاوہ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس کچھ نہیں ہے, گالیاں دیتی ہیں, خطرناک گالیاں اپنی اولادوں کو دے دیتی ہیں, مارنے کی بد دعائیں کر دیتی ہیں, مرنے کی بد دعائیں کر دیتی ہیں. اور انہیں احساس تک نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں جو بھی زبان پہ جاری ہو جائے وہ قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے میری ماں, میری بہن یا میرے بھائی زبان پہ کبھی بھی کوئی لفظ بد دعا کا نہ رہے, تاکہ وہ کہیں قبولیت کی ساتھ نہ آ جائے. اور پتہ چلا تیرا بیٹا اور تیری بیٹی اچھا خاصا کھلتا ہوا چہرہ, مسکرا ہوا چہرہ منٹوں سیکنڈوں میں پسمردہ نہ ہو جائے. اس لیے میری ماں بہنوں عقلوں سے کام لیا کرو, بات پہ اپنی اولادوں کو گالیاں مت دیا کرو. ان زبانوں پہ ہمیشہ نیک کلمات رکھا کرو. جناب والا نیک کلمات میری ماں اور بہنوں اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں پریشان تو نہیں ہوا؟ نہیں. کاش آئیڈیل بناتی ہوں اس خدیجہ الکبریٰ کو, جس خدیجہ الکبریٰ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں
40 साल की बेवा खदीजा को सीने से लगा लिया था। सुभान और अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब दीन ने कहा मुझे माल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, दीन जनाबे वाला बातों से नहीं चलता, तुम्हारे घर तक नहीं चलते हैं बातों से, तो दीन क्या चलेगा बातों से, इस्लाम क्या चलेगा बातों से। हजरत दीन के लिए भी पैसा चाहिए, दीन के लिए भी माल चाहिए, दीन आगे बढ़ता है तो जनाबे वाला जगह जगह कदम कदम पे पैसे की जरूरत पड़ती है। ये मदरसे ऐसे ही नहीं चलते, खूने जिगर पिलाती है दुनिया तो ये मदरसे चलते हैं, इनके चरागों में तेल डाला जाता है तो ये मदरसे चलते हैं। जनाबे वाला जब अपना ये खून इनके चरागों में पेश किया जाता है तो ये मदरसे चलते हैं। मदरसा जनाबे वाला ऐसा नहीं कि इसमें बैरिंग लगा हुआ है और चल पड़ा, इसमें जनाबे वाला कोई मोटर फिट हो गई और चल पड़ा। मदरसे में जनाबे वाला कोई रेसिंग पॉइंट है कि रेस दे दी और चल पड़ा, नहीं जनाबे वाला मदरसे नहीं चलते, ना मदरसे चलते हैं ना दीन चलता है, ना जनाबे वाला इस्लाम चलता है। कदम कदम पे तुम्हारी आजमाइश है, कदम कदम पे इम्तिहान है। दीन ने कहा मुझे खून चाहिए, अब आगे बढ़ने के लिए मुझे लहू चाहिए, लहू की कुर्बानी चाहिए। अल्लाह की कसम हिस्ट्री गवाह है, तारीख शाहिद है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें आज तक गवाह है कि जब इस्लाम ने मेरे दीन ने कहा मुझे खून के कतरे चाहिए तो गरम गरम खून के फव्वारे अल्लाह की कसम किसी ने पेश किए थे। तो वो एक औरत थी, एक शहजादी इस्लाम की, मेरी मिल्लत की एक बेटी थी, ना जान देखी ना माल देखा ना औलाद देखी, खुदा की कसम उसने कुछ नहीं देखा। उसने देखा तो मोहम्मद का परचम देखा, उसने देखा तो इस्लाम का झंडा देखा। जानते हो वो पाकीज़ा किरदार औरत जिसे हिस्ट्री कभी भूल नहीं सकती है और इस्लाम जनाबे वाला कभी अपने पन्नों से उस औरत का नाम खारिज नहीं कर सकता है। जानते हो वो कौन पाकीज़ा खातून थी जिसने कहा ओ इस्लाम तुझे खून चाहिए तो लहू का कतरा कतरा दे देंगे मगर तेरी इस्मत और आबरू को बचा लेंगे, तेरी हुर्मत की पासवानी का हक अदा कर देंगे। और करके दिखा दिया करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी जनाबे वाला गुलामी का, जिसकी कनीनी का पट्टा एक औरत ने जिसका नाम प्यारी प्यारी हजरत किबला काबा हजरत सुमैया था, वो हजरत सुमैया करोड़ों सलाम हो मदीने वाले नबी पर, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी कनीनी का पट्टा सुमैया की गर्दन में पड़ा हुआ था। अल्लाह की कसम खून का एक एक कतरा सबसे पहले अगर किसी औरत ने खून पेश किया है इस्लाम के लिए तो वो हजरत सुमैया ने पेश किया है। और जब मेरे दीन ने कहा मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए आगे बढ़ने के लिए तो जनाबे वाले यही प्यारी प्यारी खदीजतुल कुबरा थी जिन्होंने कहा ए प्यारे नबी इस दीन को आगे बढ़ाने के लिए पैसा तो पैसा, खदीजा के खून का आखिरी कतरा भी चाहिए। तो ये प्यारे मेरे शौहरे व बशियार आप कभी किसी वक्त भी उदास नहीं होंगे। आपकी बीवी खदीजा कदम कदम पे इस्लाम का परचम बुलंद करती हुई नजर आएगी। हक अदा करके रख दिया है उस खदीजतुल कुबरा ने। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली खातून है जिस औरत पे अल्लाह का सलाम आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की औरत जनाबे वाला मुझे महसूस होता है कि आज की औरत को उन पाकीज़ा किरदार औरतों का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए, उनकी यादों के चराग जलाने चाहिए, उनकी यादों के चराग जलाने चाहिए जनाबे वाला। हाँ हमारी माँ और बहनों को ये परकटी तितलियों को बजाय आइडियल बनाने के खदीजतुल कुबरा को आइडियल बनाओ, जनाब फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ, जनाबे वाला राबिया बसरिया को आइडियल बनाओ। मेरी माँ बहनों अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में फलाह और बहबूद चाहिए, हुस्न 4 दिन का है, जवानी 3 दिन की है और जनाबे वाला खत्म हो जाएगी दुनिया। बड़े बड़े हुस्न जनाब जमीनों के नीचे दफन है, जाओ कब्रिस्तानों में जाके देख लो। जमानों के पैकर महजबीन महबिश और जनाबे वाला गजाला जबीन न जाने कैसे कैसे लालाजार और गुलजार जनाब कब्रिस्तानों में पैबंद बने हुए हैं। कोई बच नहीं सकी है, न बच सकेगी, न कोई बचा है, न कोई बच सकेगा। इन घमिंदे जमालों पे, इन हुस्नों पे घमंड करके अपनी हया का जनाजा मत सजाओ, अपने पर्दों की धज्जियां मत बिखेरो। दुनिया चंद रोज की है, अल्लाह की कसम एक दिन आएगा जब अल्लाह के हुजूर जाओगी और जनाबे वाला अपने किए का फल अपने हाथों से अपने हाथों में देखोगी, अपने किए का फल अपने जनाबे वाला आंखों के सामने अपने आप देखोगी। अगर तुमने हया से जनाबे वाला हया के बोझ तले दबकर अगर तुमने खुदा की कसम दीन की खिदमत की है तो खुदा की कसम ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर भी तुम नहीं कर पाओगी। हज़रात मोहतरम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سبحان اللہ. پہلی بار آئے ہیں، اب قرآن اترے گا. آج سے پہلے قرآن نہیں اترا ہے، آج سے پہلے قرآن نہیں اترا ہے، آج اترے گا قرآن. جبرائیل آئے ہیں، مگر ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل یہ بھی کہہ کے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں آئے تو یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں. اللہ ان پر سلام فرماتا ہے. وَقُلْ مِنْهُ السلام علیہا، یہ محبوب خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کے، روٹی لے کے، پانی لے کے. اللہ ان پر سلام پڑھتا ہے. حضرت اور سے کہیے سبحان اللہ. پھر حضرت جبرائیل امین نے قرآن کی آیت دی. کانپ گئے جناب والا، لرزبر اندام ہو گئے مصطفیٰ، چہرے کا کلر بدل گیا مصطفیٰ کے. غار ہیرا سے نکلے مصطفیٰ، تیزی سے گھر پہنچے جناب والا. جا کے دیکھا پاکیزہ کردار بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر وفا شیار آج کانپ رہا ہے، تھر تھر کر رہا ہے. بات کیا ہے؟ پوچھا اے مصطفیٰ بات کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو. زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، کمبل دے دو، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. پیاری خدیجہ الکبریٰ وفادار بیوی، بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے جناب والا. خدا کی قسم ایسی بیویاں ہوتی ہیں تو گھر جنت کا نمونہ رہتا ہے. آج کی بیویاں جناب والا بجائے فرما برداری کرنے کے غلامیاں کروا رہی ہیں شوہروں سے. بہت ساری عورتیں ہیں جناب والا جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. کہتی ہیں دلپت پور جا رہے ہیں اور پتہ چلا جناب والا بادلی ٹانڈا پہنچ گئی. کہتی ہیں کہ بادلی ٹانڈا جا رہے ہیں اور پتہ چلا رامپور پہنچ گئی. امانت شوہر کی امانتوں کا بھی لحاظ نہیں، شوہر کی جناب والا حقوق کا لحاظ نہیں. وہ عورت جناب والا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جس عورت نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، وہ عدت زکاتہا اور زیوروں کی زکات دے دی، وہ صام الشہرہا رمضان کے روزے رکھ لیے. 3 باتیں ہو گئی یہ عورت کے لیے. اور چوتھی بات یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور جس عورت نے ان 3 باتوں کے ساتھ ساتھ آزاد بالہا اپنے آدمی کی خدمت کر لی. سبحان اللہ ضرور سے کہہ دو. اپنے آدمی کو آدمی سمجھ لیا، شوہر کو شوہر سمجھ لیا اور شوہر کو اپنے دل پہ رکھا، اپنے جگر میں رکھا، اپنے سر پہ رکھا. شوہر کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. جس عورت نے یہ کیا 4 باتوں پہ عمل کر لیا، میرے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنت بلا حساب ولا کتاب. ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے گی اسی گیٹ سے بے روک ٹوک جنت میں انٹری کر جائے گی، نہ روکا جائے گا نہ ٹوکا جائے گا. اے میری ماں اور بہنوں، شوہر شوہر ہوتا ہے اور یاد رکھو اچھی بیویوں کے پاکیزہ کردار شوہروں. تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری برتنے کی ہے، جو چاہو وہ برت لو. کھیت برت لو، کھلیان برت لو، پیڑ برت لو، گلزار برت لو، چمنستان اور گلستان برت لو. اے لوگوں زمینیں برت لو، کاریں برت لو، اسپلنڈر چلا لو، ایریٹا پریٹا اور کریٹا اور فارچونر، جو چاہو وہ چلا لو. دنیا ساری کی ساری برتنے کی ہے. وہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سب سے اچھی برتنے کی چیز پاک عورت ہے، نیک بیوی ہے. اگر نیک بیوی ہے تو وہ سب سے اچھی برتنے کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر رسالت، یا رسول جشن اللہ. دستار بندی حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں کو مارا مت کرو، اپنی بیویوں کو سینوں سے لگایا کرو. اپنی بیویاں پھول ہیں انہیں سونگا کرو. بیویاں پھول ہیں ان سے خوشبو لیا کرو. مگر یہ لوگوں میرے نوجوانوں اور ملت کے نوجوانوں، اگر بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے تو یاد رکھنا ماں سر پہ بٹھانے کی چیز ہے. بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے تو بخدا ماں سر پہ بٹھانے کی چیز ہے. ماں ہے، اس کا سرکل الگ ہے. اور جب میں منع نہیں کرتا، جب تم بیوی کو کہتے ہو آپ ادھر تشریف لائیے، آپ ادھر بیٹھیے، آپ ادھر بیٹھیے، بے شک ادب سے اپنی بیوی کو بولیے. مگر اے لوگوں اسی وقت جب تم اپنی بیویوں کو سارے ادب سے جنا، ایسا لگتا ہے جیسے لکھنؤ کی ساری نزاکت ان میاں بیویوں کے بیچ میں ہے. ایسا لگتا ہے جناب والا لکھنؤ بھی کانپ جائے گا اس ادب کے سامنے جو ادب آج کے میاں اور بیویوں کے درمیان ہے. اے لوگوں جب ادب جناب والا کانپتا ہوا نظر آئے، اس ٹائم ماں کا جھریوں والا چہرہ نظروں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. اسے گالیاں مت دینا، اسے چھڑکنا
फरमाया माँ को जनाबे वाला बदतमीजी से नहीं बोलना, बैठी रह मत करना, उसके नाजुक दिल को तकलीफ मत दे देना। मेरा अल्लाह फरमाता ला तनहरहुमा, ना माँ को छिड़कना ना बाप को छिड़कना, और जब उनमें से कोई बूढ़ा हो जाए तो अपने रब से हर नमाज में यही कहना, अल्लाह मेरे माँ बाप पे तू ऐसी मेहरबानी फरमा जैसे बचपन में इन्होंने मुझ पे मेहरबानी की थी। एक माँ राजी है तो घर और संसार जनाबे वाला चमनिस्तान है, और अगर माँ का नाजुक दिल टूट गया तो खुदा की कसम माँ का नाजुक दिल टूट गया तो एक ताबीज नहीं तुम करोड़ों ताबीज ले लेना पीरों से, बल्कि एक पीर नहीं हजारों पीरों को ताबीजों की जगह मेन गेट पर लटका लेना कि ताबीज के साथ साथ मियाँ तुझे भी लटका लिया हमने अपने गेट पे, तो याद रखना ताबीजों को लटका लेना या मियाँ ही को लटका लेना। खुदा की कसम दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तेरे घर का रूठा हुआ करार तुझे वापस दे सके, रूठा हुआ चैन तुझे वापस दे सके। अगर बेचैनी का खात्मा चाहते हो तो बूढ़ी माँ को जनाबे वाला रातों के अंधेरों में शफकत की नजर से पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, माँ से खैरियत पूछो, और बाप से कहो अब्बा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए मेरे बाप ये शरीयत तुम्हारे दम कदम से है, ए मेरे अब्बा हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हजरत जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर तकलीफ में मैं ये कहना चाहता था, लंबी हुई जा रही है बात, पता नहीं मैं भी किधर से किधर चला जाता हूँ, गोश हो गए गालियां दोगे देते रहो, मगर जनाब मुझे याद करना ही था कि जनाबे वाला बीवियां शौहरों के लिए और शौहर बीवियों के लिए फर्मा बरदार रहे, वफादार रहे। मेरी खदीजतुल कुबरा पे सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो खदीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर दो। खदीजतुल कुबरा परेशान हो गई। एक कंबल था, कंबल शरीफ, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 मिनट और लूंगा तुम्हारे। अपने मौजू की तरफ आया भी नहीं कि टाइम पता नहीं कि इतनी जल्दी चला जाता है। 11:16 पे माइक थामा, 12:16 तक एंड करूंगा। पता नहीं कैसे कैसे ये टाइम चला जाता, मानता ही नहीं, टाइम गुजरता ही रहता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम परेशान तो नहीं हो? दिन निकल जाएगा फिर भी परेशानी नहीं है। नहीं सुबह की वो फट जाएगी, सुनते रहोगे। नहीं, देखो कितने लोग सुनते हो, सुबह तक हाथ उठा के बताओ। अल्लाह आबाद रखे। भैया हाथ उठाने के एक साहब भाई तो खुद ही खड़े हो गए, बोले सफाया तक ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। चलो खुशी है, अल्लाह आबाद रखे तुम्हारे इन जज्बों को सलामी पेश करो। कंबल उड़ा दिया, पहली आयत उतर आई। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह, पहाड़ उठा न सके वो मुस्तफा के सीने में उठा लिया। सुभान अल्लाह, जो जमीन उठा न सकी वो मुस्तफा के सीने में उठा लिया। क्या है वो जनाबे वाला वो सीना भी? कुरान कोई मामूली किताब नहीं। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। मुश्किल इतना कि पहाड़ उठा न सके, हैवी और हार्ड इतना कि समंदर जनाबे वाला ताब उठा न सके, सुभान अल्लाह, आसान इतना, इजी इतना कि छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान। ये कमाल है मुस्तफा के सीने, न सीने पे उतरा होता न फैजान बरसा होता। सुभान अल्लाह, सीने का कमाल है। सुभान अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे सीने में कुरान लिए और जनाबे वाला बात यहाँ खत्म थोड़े। छोटे छोटे बच्चे 10 साल का, एक मैंने देखा अभी कहीं 9 साल का बच्चा पूरा कुरान खाता। अल्लाह, हैरत की इम्तिहान रही। अल्लाह, मैं खुद भी एक जमाना था जब मैंने 13 साल की उम्र में और 11 महीने में मैंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा इस साल अब तो 9 साल के बच्चे हाफिज, 8 साल के बच्चे हाफिज। हैरत होती है, इतना मोटा कुरान 8 साल 9 साल के बच्चे के सीने में कैसे चला गया। हजरात बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। 5 साल का बच्चा सीने में हाफिज कुरान है। सुभान 5 अल्लाह, साल तो बहुत हो गए। ऐसे भी रिकॉर्ड हैं कि माओ के पेटों से सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माँ
हाफिज कुरान पैदा हो गए। सुभान अल्लाह नारे अदरी आज की माओ को तो इसका टेंशन नहीं है, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अल्लाह अनानास खिलाओ। मालिक के अनानास खाएगी, सेब संतरा। बुढ़िया भी यही कह रही है, सेब ला के ये संतरे खिलाओ, बच्चा मोटा ताजा पैदा होगा, गोरा और खूबसूरत। अरे तुझे बच्चे की खूबसूरती और मोटे ताजेपन की पड़ी है, मगर तुझे ये पता नहीं है कि तेरे बच्चे के साथ दो चीजें आ रही हैं। एक चीज बॉडी है और एक चीज रूह है। अल्लाह अकबर बॉडी की फिक्र है, मगर जो चीज बॉडी को एक्टिवेट कर रही है उसकी किसी को फिक्र नहीं है। अल्लाह बगैर रूह के बॉडी का क्या मतलब? क्या बात है, क्या बात है। कोई मतलब है? अब तुम ही बैठे हो, रूह है तो तुम देख रहे हो मुझे, मैं इमरान हनफी, तुम हाजी जी। रूह है तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, रूह है तो बोल रहे हूं मैं, तुम सुन रहे हो। बेशक रूह है तो मैं सोच रहे हूँ, तुम्हें बता रहे हूँ, माफी ज़मीर अदा कर रहे हूँ। बेशक और अगर रूह ना हुई तो कान मीनिंगलेस, आंखें मीनिंगलेस, पाँव मीनिंगलेस, मुंह खुला कर दो। अल्लाह कुछ अकबर बचेगा? ऐसा बड़ा कुछ बचा? अल्लाह एक डिब्बा है मोबाइल, मगर बगैर सिम के खाली अरे सिम ही एक्टिवेट करता है, तो रूह एक्टिवेट करती है पूरी बॉडी को। सुभान सेब अल्लाह संतरे की फिकर है, अच्छा हो, मोटा ताजा हो, गोरा चिट्टा हो, मगर ये फिक्र भी है कि उसकी रूह भी बढ़िया हो, आगे चल के लठिया ना उठावे हम पे। सुभान जब बीवी उसके घर में आ जाए तो बुढ़िया बुढ़े के लिए नाग ना बन जाए, ये भी फिक्र है। बाद में ताबीज लेगी मियां का, अभी से फिक्र कर। अनानास खिलाओ, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ और अपनी बहू से कहो, बेटा जब अजान आए, अजान की आवाज आए तो गौर से सुना कर, बेशक सुभान अल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा कर, तिलावत किया कर, बुजुर्गों के किस्से और बुजुर्गों की दास्तानें सुना कर, प्यारे अबू बकर का नाम लिया कर, गौसे आजम की चर्चा किया कर, गरीब नवाज की बातें किया कर, निजामुद्दीन औलिया का जिक्र किया कर, और जबान पर कभी गाली ना आए, और जनाबे वाल जबान पर कभी गाली ना आए, अच्छी बात आए, रोजे की हालत में रहे, कुरान शरीफ पढ़, कुरान शरीफ पढ़ा, पूरे घर के अंदर अमन अमान का माहौल भी बने, और जनाबे वाला तेरा पोता जब दुनिया के पर्दे पे आए, ये तेरी पोती दुनिया के पर्दे पे आए, सेब संतरा और अनानास खाने से अगर बच्चा हेल्थी होगा तो खुदा की कसम कुरान सुनने सुनाने, अजान सुनने सुनाने और अच्छी बातें करने, बुजुर्गों के वाक़यात पढ़ने और बुजुर्गों के वाक़यात सुनाने से इंशाअल्लाह रूहानी तौर पर तेरा पोता तेरी पोती इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा, रूहानी तौर पर इतना स्ट्रांग होगा, हो सकता है पैदा होने के बाद धरती के पर्दे पे आने के बाद रूहानी तौर पर मजबूत होने की वजह से अल्लाह अपने महबूब बंदों में उसे शामिल कर ले। हो सकता है तेरा नसीब ही सुभान अल्लाह हो सकता है इनकलाब आ जाए, पूरे घर में परिवर्तन आ जाए, मगर किसे फिक्र है रूहों की। अजी जनाब बात ज्यादा हुई जा रही है, मुझे कुरान की तरफ आना है, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। कांप गए मुस्तफा, कंबल शरीफ उड़ा दिया गया। तो प्यारी बीवी ने कहा बैठे रहो थोड़ी देर और, अभी मैं जब तक कुरान की बात नहीं करूंगा कोई जाएगा नहीं, अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो वरना अस्तर बाकी है। वाह 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 वाह, क्या बेशक माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कांप गए मुस्तफा, चादर ओढ़े हुए हैं। अब देखो मजे की बात, खुश रहे मेरे बेटे, मजे की बात। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप घबराएं नहीं, सुभान अल्लाह आप घबराएं नहीं मेरे शौहर वफा से यार, आप घबराएं नहीं, उदास न हो, मुझे यकीन है। ये जुमला सुनिए, ये जुमला सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह खुश रखे मेरे बेटे, जल्दी जल्दी सब एक साथ, सब एक साथ खुश रहो।
आबाद रहो, तुम्हारा नसीबा रोशन हो, और ये सारे जितने भी दस्तार के फारिगीन हैं, हामिलीन हैं, अल्लाह सबका नसीबा रोशन करे। सुभान अल्लाह। खदीजा, मेरे नबी में कोई खूबी है जो ना हो? अरे कोई खूबी ऐसी है जो ना हो? सब खूबी है, मगर खदीजतुल कुबरा क्या कहती है? खदीजतुल कुबरा, अल्लाह सलामत रखे मेरे लालो, मेरे फर्जंदो, सलामत रहो। क्या बच्चे हैं, अभी तो बात इनकी कर रहा हूं, मैं करूंगा, लेकिन बात पहले प्यारी खदीजतुल कुबरा कहती है मेरे शौहरे वफस यार, आप टेंशन में क्यों हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं, बात क्या है? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया एक नामूस आया था मेरे पास, ऐसा ऐसा था। तो खदीजतुल कुबरा कहती हैं तो आप घबराइए मत, अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। क्यों अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? एक खूबी का बयान करती है, हालांकि खूबियां करोड़ों हैं, मगर एक खूबी क्या कहती है? अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, क्योंकि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और मेहमानों को खाना खिलाना इतना अहम है कि करोड़ों खूबियां एक तरफ और मेहमानों को खाना खिलाना एक तरफ। तालिब इल्मों को खिलाने वाले सराबे वालों और सिंगनी वालों तुम्हें मुबारक हो, ये तो आम मोमिन भी नहीं, ये तो खुदा के कसम नबी के मेहमान हैं, जिन्हें तुमने खाने खिलाए, कपड़े पहनाए। जानते हो ये मामूली लोग नहीं, ये तुम्हारे मेरे बच्चों की तरह नहीं। मेरा बच्चा रूठ जाए तो मैं मनाता हूँ, तुम्हारा बच्चा रूठ जाए तो तुम मनाते हो, मगर कभी इनका दिल टूट जाए तो ना उस्ताद मनाता है, ना माँ और ना बाप। वो माँ बाप अपने घरों में पड़े हैं, टीचर जनाब खूने जिगर पिला के जनाबे वाला सो गया है और कहवे ख्वाब हो गया है। नाज़िम आला की दुनिया तो अलग ही है, उस दुनिया का जनाबे वाला इदराक किसे हो सकता है? हर वक्त बेचारे को टेंशन रहता है, कहाँ से लाऊं खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। हजरात बच्चा बीमार हो गया है, इसकी दवाई का इंतजाम करो तो कौन से डॉक्टर को बुलाऊं? और डॉक्टर एक से एक जनाबे वाला इस वक्त अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं रातों को, तो अब माजी में पिछले दिनों में रातों में डकैतियां होती थी, मगर आज के तरक्की याफ्ता दुनिया में, तरक्की याफ्ता दिनों में डॉक्टरों की शक्ल में लुटेरे बैठे हैं, डकैत बैठे हैं। मगर सलाम करता हूँ उन डॉक्टरों को जिन डॉक्टरों ने अपनी फैयाजी के दहाने तालिबे इल्मों और आलिमों की तरफ खोल रखे हैं। खुदा की कसम वो डॉक्टर जनाबे वाला, उन्होंने अपने 24 घंटों से 1 घंटा, कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने मदरसों के तालिबे इल्मों के लिए वक्फ कर रखे हैं। ऐसे डॉक्टर दुनिया में भी जनाबे वाला इज्जत का ताज पहनेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मस्जिद करामत उनके पांव छूकर गुजर जाएगी। हज़रात मोहतरम कहना चाहूंगा, ओ लोगों हर वक्त कौन इनके दिल टूट गए याद कर करके, एक याद नहीं हो रही है, दिल टूट गया रख दिया, दिल टूट गया रख दिया। जनाबे वाला अब दिल टूटा हुआ है, कौन मनाएगा, कौन राजी करेगा इस तालिबे इल्म को? मैंने अपने बेटे समनानी को राजी कर लिया, मैंने अपने बेटे रहमानी को राजी कर लिया, मैंने अपने बेटे हसानी को राजी कर लिया, मगर दिल इनका टूटा हुआ है, माँ बाप नहीं। अब मुस्तफा के दरबार चलो, आमिना के लाल से पूछो, ए मुस्तफा तेरे मदरसे के, तेरे घर के ये अजीज मेहमान, ए आका दिल टूट गया है, कौन उठाए इनके नखरे और कौन उठाए इनके ना? तो मेरे मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों इनके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ये अल्लाह के ऐसे बुलंद मर्तबे वाले लोग हैं कि इनके दिल जब टूट जाते हैं तो अल्लाह हुक्म खास जारी फरमा कर रहमत के फरिश्तों को इन तालिबे इल्मों के पास भेजता है और उनसे कहता है कि मेरे नबी पाक के घर वालों के लिए ये फरिश्तों इनके पैरों के नीचे पर बिछा दो, रहमत के फरिश्ते आते हैं। इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल तालिबिल इल्म बिला शुबा, रहमत के फरिश्ते आते हैं तालिबे इल्म के पैरों के नीचे अपना पर बिछा देते हैं और फिर इनसे कहते हैं रिदल तालिबिल इल्म, फिर इनसे कहते हैं अब तो तुम राजी हो, अब तो तुम खुश हो, अब तो तुम खुश हो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम औलाद से कहते हो राजी हो और इनसे फरिश्ते पर बिछा के कहते हैं हम तो राजी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रसाला, जिंदाबाद जामिया हनफिया रज़ाए मुस्तफा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। ए लोगों, अगर तुम गुड़ न दे सको तो गुड़ जैसी मीठी बात कह दिया करो। कभी किसी तालिब इल्म को देखा करो, अगर 10, 20, 100, 50 रुपए तालिब इल्म की जेब में न रख सको दूध पीने के लिए, चाय पीने के लिए, अगर तुम्हारी मानसिकता तुम्हें इजाजत न दे तालिब इल्म की खिदमत की, अगर तुम ये सोचो 10, 20, 100, 50 रुपए में मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझ पर कुछ नहीं बचेगा, और नहीं दे सकते तुम 10 रुपया बच्चे को, तो खुदा की कसम बस इतना ही कर लेना कि मोहब्बत की एक नजर से तालिब इल्म का चेहरा जरूर देख लेना, तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी शादाब हो जाए। मामूली मत समझना इन तलबा को, ये अल्लाह की अजीब मखलूक है, ये डिफरेंट है, ये हमसे और तुमसे बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ता हूँ, मेहमान नवाजी करते हो सरकार, सुभान अल्लाह मेहमानों को खिलाया करो। आज मुंह मोड़ रहे लोग मेहमानों से लॉकडाउन के बाद। पहले तो जनाबे वाला 5-5 चीजें रख दी जाती थी दस्तरखान पे, अब तो बिस्कुटों से भी छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा कह बिस्कुट नहीं मांगे, ऐसी चीजें। अल्लाह लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग, लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग। लॉकडाउन की दुनिया में थोड़ी तरी थी, लॉकडाउन के बाद सूखापन है, सूखापन रूखापन है। ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग, कुरान के बाद की अलग, कुरान के उतरने के बाद की दुनिया अलग। आप समझें, समझो है, समझें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या मजमा है मुफ्ती अफरोज रजा, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके दिल का खुलूस कबूल फरमाए। कारी जुबैर साहब, मजमा ऐसा है जैसे बर्फ से जम गया हो, इतना खुश मजमा। जलसे रोजाना करता हूँ, मगर बेफजले ताला बरकत का जो समक दिखाई दे रहा है इदारे में, ऐसा समक कम जलसों में नजर आता है। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से इस खुलूस का बदला अता फरमाए। आमीन। आज कुरान से पहले की दुनिया 4000 साल पहले, कितने दिन पहले? 4000 पहले। कुरान से पहले 4000, और कुरान के बाद कितने हो गए? कुरान को आए हुए कितने दिन हो गए? 1400 साल। कितने साल? 1400। कुरान यहाँ है, इससे पहले 4000 साल, और कुरान के बाद 1400 साल। वो 4000 साल का जमाना देखो, बिल्कुल काला, अंधेरे में, उजाले का नाम निशान नहीं, मजहबी एतबार से लाचार, सियासी एतबार से कमजोर, इल्म के एतबार से यतीम, कुछ नहीं था उन 4000 में। अल्लाह। अरे बिजली नहीं बना पाए, डिबियों की जिंदगी गुजरती थी। सुभान अल्लाह। मोटरसाइकिलें नहीं थी, साइकिल नहीं थी, बेशक। और जनाब माइक नहीं था, रडार नहीं था, चांद पे जाने का सपना नहीं था। किसी को यह भी पता नहीं था डीजल है निकलेगा जमीन में, पेट्रोल निकलेगा, कुछ नहीं पता था। बुर्ज खलीफा तो बुर्ज खलीफा, 3 मंजिल इमारत नहीं बना पाते थे, 4 मंजिल इमारत नहीं बना पाते थे। बेशक। क्या था? कुछ भी नहीं था। ये तो था जनाबे वाला विकास की गति। अब जनाबे वाला मैं बताऊं, मजहबी और अखलाकी एतबार से कितना कमजोर था। कुरान के आने से पहले सारी दुनिया में जनाबे वाला आंसुओं के सिवा कुछ न था, खुशी कहीं थी ही नहीं, गम था, रंज था, मुसीबत थी। 4000 सालों में जनाबे वाला 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए। कमो बेश हर नबी ने कहा, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ। मगर जनाबे वाला बहुत दिनों में एक आध बंदा आ गया, या 2 बंदे आ गए, या 3 बंदे आ गए। दुनिया पत्थर मारती थी नबियों पे, दुनिया जनाबे वाला गालियां देती थी नबियों को, कत्ल करती थी नबियों को, शहीद करती थी नबियों को। तो जनाबे वाला नबियों का गुस्सा भी तेज हो जाता था। किसी वक्त तो वो नबी अल्लाह से यूं कह देते थे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। ए हमारे रब, सबर पानी सर से ऊंचा हो गया है, सबर का पैमाना लबरेज हो गया है, एक नहीं मानता, सबको मिटा दे, सबको उजाड़ दे। अल्लाह ने फरमाया तू कश्ती बना, पानी लाऊंगा, एक तूफान आएगा,
आसमान से पानी बरसेगा, जमीन से पानी उगलेगी निकलेगी, पानी उगलेगी, पानी पानी खड़ा होगा मेरे नूह, तू कश्ती बना मैं अजाब लाऊंगा। तो जनाबे वाला एक अजाब आया, दुनिया में आंसुओं का दौर शुरू हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया, पानी आया, डूब गई दुनिया, मर्द डूबे, औरतें डूबी। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने अपनी कुदरत से फिर खड़ी कर दी दुनिया, मगर जनाब कहाँ माने। वो एक नबी आया, नबी से नबी कहने लगा आ जाओ अल्लाह को मान लो। तो कहने लगे अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह से कहो वो हम पे अजाब भेज दे। उन्होंने कह दिया अल्लाह ये अजाब को कह रहे हैं, तो अल्लाह ने फरमाया तू घबरा मत, अजाब आएगा, पत्थरों की बारिश कर दूंगा, सबके उजाड़ दूंगा इनकी बस्तियों को। पत्थरों की बारिश ही उजड़ गए। एक ने कहा, एक नबी ने कहा, एक मौलाई ने बंदर बना दे बंदर, ये बड़ी मजाक बना रहे तेरे नबियों की। अल्लाह ने फरमाया बंदर बना दूंगा। 70,000 बनी इसराइल को बंदर बना दिया। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कूनू क़िरदतन खासिन, कूनू क़िरदतन खासिन। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को भी चुप्पा पर दिया गया था कि जब चाहोगे ऐसी दुआ है तुम्हारे पास, जब चाहोगे दुआ मांग लेना मैं हर हाल में कबूल करूंगा। सबने अपने अपने भी चुप्पा पर का यूज कर लिया, मगर कुर्बान अपने नबी पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अपने महबूब पर कुर्बान। कई बार मौके आए सुभान अल्लाह कि वो भी कह देता अल्लाह ने मिटा दे, अल्लाह ने उजाड़ दे, अल्लाह ने तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। मगर जब उनके रास्ते रोके गए, मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा, ऊंटों की ओझड़ियां डाली गई, मुस्तफा ने कुछ नहीं कहा। जब कांटे डाले गए, मुस्तफा जाने रहमत ने कुछ नहीं कहा। 3 साल तक शेर अबी तालिब में सोशल बाइकॉट को फिर रोना आता है, इस मौजू पर तो रोना आता है। 3 साल शेर अबी तालिब में सोशल बाइकॉट को फेस करता है मेरा मुस्तफा। चमड़े जो सूखे पड़े थे, जो चमड़े सूखे पड़े थे, उन चमड़ों को ढूंढ ढूंढ के नबी के साथ वाले उन चमड़ों को ढूंढ ढूंढ के लाते थे और जनाबे वाला पत्थरों से कुचल कुचल के पानी में डाल डाल के यूं खा खा के जिंदगी गुजारते थे मुस्तफा जान रहमत के साथ वाले। ऐसा ही बयान देते हैं, मगर कभी जबान पे ये नहीं आया अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्हें तबाह कर दे, कभी नहीं आया। अल्लाह अकबर, क्या दिल है मुस्तफा का। यही तो फर्क है। 1,24,000 नबियों और रसूलों पे इसीलिए कुरान नहीं उतरा, कुरान उस सीने पे उतरना था। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान आलिम के टीचर आलिम के सीने पे नहीं, कुरान मुअल्लिम के टीचर पे उतरना, मुअल्लिम के सीने पे उतरना था। कुरान जनाबे वाला खुदा के कसम नबी के सीने पे नहीं, कुरान नबी उस्ताद के सीने पे, जो उस्ताद हो ऑफिशियली 1,24,000 नबी तशरीफ लाए, मगर ऑफिशियली किसी ने बयान नहीं दिया कि मैं उस्ताद हूँ, मैं मुअल्लिम हूँ, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। एक अकेला मेरा नबी आया है जिसने ऑफिशियली ये बयान जारी किया। वो इसको मुअल्लिम ने उतम्मिम मकारिम अखलाक, आई वाज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए टीचर के तौर पर अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को भेजा है। मगर जनाब टीचर का दिल भी अजीब दिल होता है, वो टीचर नहीं है, ये टीचर है। इसीलिए सब पूरे बर्बाद करते उजाड़ दे, खत्म करते इन बस्तियों को। अल्लाह ने फरमाया सबको खत्म कर दूंगा, मगर टीचर का दिल बड़ा अजीब दिल होता है, पढ़ाने वाले का दिल बड़ा अजीब दिल होता है। खुदा की कसम इसका दिल होता है। सब आदमी मरहलों से गुजरता है पढ़ाने वाला। कौन पूछता है पढ़ाने वाले के दर्द को कौन समझ सकता है? अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हें। पढ़ाने वाले के दर्द को कौन समझेगा, उसके दुख दर्द को कौन समझेगा? किसके सामने बयान करे रंजो कलम की जनाबे वाला गम की रंजो कलम की हृदय विदारक दास्तान है। ये टीचर किसके सामने बयान करे? बेचारे पीते हैं, देखते हैं, पी के रह जाते हैं, कड़वे घूंट हैं, लेके रह जाते हैं। न नाजिम जाने इनका दुख दर्द और जनाबे वाले न कमेटी जाने इनका दुख दर्द। इन टीचरों का दुख दर्द जाने कौन है? कोई 8,000 में पढ़ाता है, कोई 12,000 में खूने जिगर पिलाता है, कोई 15,000 में रात और दिन जनाबे वाला दीने मोहम्मदी का झंडा उठाता है। शिकायत का एक लफ्ज भी जबान पे नहीं है जनाबे वाला, ना ना ना। और फिर हालत ये है इनकी, इसी अफरोज रजा को देख लो। अफरोज रजा एक टीचर है, अफरोज रजा एक मास्टर है, अफरोज रजा एक मुअल्लिम है, पनोरा का मदरसा है। बैकग्राउंड देख लो, बुखारी तक पढ़ने वाले तालिब इल्म है। हजरत हर मदरसे का दस्तूर है 12 बजे क्लास एंड हो जाएगा, हमें खाना भी है, पीना भी है, नमाज भी पढ़ना
करना है, आराम भी करना है, मगर अफरोज रजा तेरी हिम्मत को सलाम, एक सींगली का नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया अफरोज रजा। और फिर सींगली का ही नहीं बल्कि पूरा खित्ता भारतवर्ष में अफरोज रजा की वजह से जाना जा रहा है। अफरोज तेरी हैबत, तेरी इज्जत, तेरी रिफत को सलाम। कि सुबह को फजर की नमाज के बाद बैठ जाता है पढ़ाने के लिए, तो खुदा की कसम न नाश्ते की फिक्र है न खाने की फिक्र है, आते रहो फैज हासिल करते रहो। 12 बज गए, एक जनाबे वाला घंटियां मुकम्मल हुई, मगर फिर भी दूसरी जमात का तालिब इल्म कहता हुजूर मेरी बात ये समझ में नहीं आई। तो खुदा की कसम ये नहीं कहा भूख लग रही है, 1 बज गया और 1:30 बज गया, नमाज का टाइम हो गया। नमाज के बाद खाना तो खा लेते मुफ्ती अफरोज रजा, मगर बजाय खाना खाने के गम खाता है, खाना खाने के बजाय रंज खाता है। एक तालिब इल्म की जमात जोहर के बाद आ जाती है, आपको ये हुजूर पढ़ा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, समझ में नहीं आया। 3 बज गए, 4 बज गए, असर का टाइम हो गया, बैठा रह गया। असर के बाद सोचा था थोड़ी चहलकदमी कर लेंगे, तो मुस्लिम शरीफ के तलबा आ गए, कहने लगे हुजूर ये चैप्टर हल ही नहीं हो रहा है, इमाम नबवी कुछ कह रहे हैं, मुहश्शी कुछ कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इमाम अबू हनीफा का मसलक ये है और इमाम शाफी का मसलक ये है। हजरत अबू दाऊद ने तो यूं रिवायत किया है, इब्ने नसाई तो ये कहते हैं, इब्ने माजा तो ये कहते हैं, मगर इनकी समझ में नहीं आती है। मुस्कुराते हुए मुफ्ती अफरोज रजा, चेहरा देखो नूर का इशारा है, लगा रहा है। असर के बाद बैठ गए, सूरज जनाबे वाला पर जनाबे वाला सूरज जनाबे वाला लाल पीला हो चुका है और दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है खाबर मशरिक। मगर मुफ्ती अफरोज रजा को 1 सेकंड में मोहलत जो मिली हो, मगरिब की अजान हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दिल हल्का करने के लिए मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद जनाबे वाला खाना आना चाहिए था और मिलना चाहिए था, मगर जनाबे वाला पढ़ाते ही पढ़ाते 2-4 लुक़मे खा गया। ईशा तक यही हाल रहा, रात के 12 बजे यही हाल, फिर जनाबे वाला सुबह की तो फटती है, तो ये फिक्र है कि इन मुदर्रिसीन की तनख्वाहें जाएंगी। जनाबे वाला खुद अपनी ही तनख्वाह का हाल देख लो, क्या तनख्वाह है, 17 साल हो गए, कनौरा कहां से कहां पहुंच गया। एक अफरोज रजा इसहाकी और नाज़िम आला शाकिरुल कादरी की वजह से कनौरा कहां से कहां पहुंच गया। और आज जनाबे वाला जो मंजर कनौरा में था, उससे ज्यादा हसीन मंजर मुझे यहाँ इस जंगल में नजर आ रहा है। ये सीखने का जंगल, एक इस साल में मेरे साथ मौलाना आशकार नहीं भी रहते हैं, पहचान न सके, इधर भी आबादी इधर भी आबादी। कहने लगे हजरत पिछले साल तो बिल्कुल जंगल था। मैंने कहा जहाँ मदरसा बस जाता है मौलाना, अल्लाह वहाँ आबादियां बसा दिया करता है। ये मदरसा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। टीचरों के दुख दर्द को कौन समझता? कोई भी नहीं समझता। मेरा नबी अकेला टीचर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा टीचर है, ऐसा टीचर है, पेड़ के नीचे आ गया तो अपने साथियों को समझा रहा है, ए मेरे गुलामों, पेड़ देख रहे हो तुम, ये पेड़ देख रहे हो तुम? गुलाम बोले हाँ सरकार, ये पेड़ तो दिखाई दे रहा है। इरशाद फरमाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ रहे हैं ना मेरे गुलामों, बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम अच्छा वजू बनाओगे तो तुम्हारे गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं। हर बात को मेरा मुस्तफा टीचिंग करता है, हर बात को सिखाता है, मिसालें दे दे के सिखाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ और बहनों, अगर इस हदीस से तुम्हें वजू के पानी की अजमत कुछ नजर आई तो आज के बाद किसी से तावीज उवीज लेना नहीं, अच्छा वजू बनाओ, नमाज़ें पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरों से नूर फूटेगा, तुम्हारे शौहरों के दिलों में किरणें जाएंगी और तुम्हारा शौहर ऑटोमेटिकली कशन कशन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। न मियाँ की जरूरत न मियानी की जरूरत। सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर मियाँ हो मेरे समाज में तो एक मियाँ मेरे पास बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, भोला भाला सीधा साधा मियाँ, नमाजी मियाँ, रोजेदार मियाँ, परहेजगार मियाँ। सुभान अल्लाह। चले तो पल के झुका के चले, नजरें बिछा के चले। कभी खलत मलत किसी ने देखा हो तो आके दिखाए कोई, मुझे बताए। मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी, मेरे मुफ्ती आजम के फैजान का एक हसीन नमूना। सुभान अल्लाह। ये ऐसे मियाँ को पकड़ो। मेरे बच्चे की तबीयत बड़ी खराब हो गई, अल्लाह शिफा दे।
रात मैंने कहा मिल गए थे, कौन सा गांव था? सूरजपुर जमालगंज। मिल गए थे, मैंने कहा मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आज भी डिस्टर्ब था, मगर मुफ्ती अफरोज का प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है। मैंने कहा मेरा बेटा MBBS कर रहा है, तबीयत थोड़ी खराब हो गई। हजरत से कहा, हजरत ने फौरन पढ़ा और दम दिया। मैं घर गया सुबह 4 बजे, 2 तकरीरें करके रात में कई तकरीरें कर लेता हूँ, 2 तकरीरें करके गया रात में। मैंने जाते बीवी से पूछा भैया कैसा है, तो मिंबर रसूल है। बीवी कहती है अच्छा न था, मगर जब से आपने दम करवाया है तब से बहुत अच्छा है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा मियां बोला भाला सीधा सादा मियां नमाजी, वो नहीं कि औरतें पाँव दबा रही हैं, 2 साइडें दबा रही हैं, 2 जनाबे वाला बड़े नरम नरम खुदार हाथों से सब दबा रही है मियां का। मैं तो कहूँ 2-3 मिलकर इसका गले ही दबा। बेशक सुभान अल्लाह। न रहता बांस न बजती बांसुरी। तो मेरी बहनों, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे चेहरों से नूर की किरणें फूटें और तुम्हारी सॉफ्ट स्किन रहे, स्मूथ स्किन रहे, तो किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ ले और फिर अच्छा वजू कर ले, तो आका फरमाते जिसने अच्छा वजू कर लिया तो जहां जहां से वजू का पानी गुजर गया जिस हिस्से से, तो हुजूर फरमाते हैं दुनिया तो छोड़ो, नबी फरमाते हैं कल मैदान महशर में जिस्म के वो हिस्से जिस पे वजू का पानी गुजरेगा ऐसे चमकेंगे गुर्रम मुहज्जलीन, ऐसे चमकेंगे जैसे घोड़ों के माथों पर सफेदी का निशान चमकता है। सुभान अल्लाह, ये कमाल है वजू के पानी का। फिर देख न किसी क्रीम की जरूरत, न जनाब फेस वॉश की जरूरत, न जनाबे वाला न क्रीम की जरूरत, न तावीज की जरूरत, किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। तू करके तो देख ऐसा, आगे बढ़ूं मैं जनाबे वाला फिर इधर चला गया और उधर आपके पास, मगर बातों में बात ऐसी आ जाती है कि कहना पड़ जाता है, दिल मानता नहीं, अपनी आदत से मजबूर हूँ हजरात। इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। वो दिन याद करो जब जनाबे वाला एक नबी और एक रसूल अल्लाह से कहता बर्बाद कर दे अल्लाह, इन्हें खत्म कर दे अल्लाह, इन्हें मिटा दे अल्लाह, इस बात को खत्म कर दे अल्लाह, फरमाता मिटा दूंगा, बंदर बना दूंगा, मैं पत्थर बरसा दूंगा। अल्लाह फरमाता है कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअ बासुना बयातन क़ाइलून, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर डाला। और वो अल्लाह जब्बार है, वो अल्लाह जब्बार है, अल्लाह काहिर है, अल्लाह मुतकब्बिर है। कौन रोकेगा अल्लाह को? शान वाला अल्लाह है, किसकी हिम्मत है? अल्लाह सुपर पावर है। और सुपर पावरों को भी एहसास हो गया कि हम नहीं, अल्लाह ही सुपर पावर है। तुमने देखा नहीं अमेरिका की आग ने पत्थर डाला, सुपर पावर अल्लाह है। तुमने देखा नहीं इधर जनाबे वाला आग जल रही है, इधर बर्फ जम रहा है, तुमने देखा नहीं उसी साइड में बर्फ है और उसी साइड में आग। अल्लाह की कसम सुपर पावर के तो नमूने कुदरत के नमूने ही अलग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जनाबे वाला 1,24,000 नबी और रसूल, उनका दिल देखो और मुस्तफा का सीना देखो, कैसा सीना है। पत्थर मारती रही दुनिया, नबी ने कुछ नहीं कहा। 3 साल तक शेर-ए-बी तालिम में सोशल बाइकाट को फेस कर लिया, मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा। हज़रात मोहतरम इधर देखो, तुम्हें मालूम है जब मेरे नबी ताइफ के मैदान में गए थे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ताइफ के मैदान में गए थे, कोई कसूर था, कोई जुर्म था मुस्तफा जान रहमत का। रास्ते में निकले तो 2 कुत्तों ने मुस्तफा जान रहमत के गले में चादर का फंदा डाल लिया। एक ने आगे को खींचा, एक ने पीछे को खींचा, आंखें उबल पड़ी मुस्तफा जान रहमत की। और जनाबे वाला बस इसी शान में हजरत सिद्दीक अकबर ने कहीं देख लिया, आ गए सिद्दीक अकबर, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा सिद्दीक की गर्दन में है। आ गए सिद्दीक ने जनाबे वाला उन लोगों से नबरदार, उन लोगों से नबरदार माई फरमाई सिद्दीक ने मुकाबला किया। अजी लंबी है बात, मगर उस टाइम में मेरे नबी की ज़बान से बद्दुआ के अल्फाज नहीं निकलते हैं। आज ताइफ के मैदान में जा रहे हैं, वहां के बुढ़े
बेगैरत बुढ़े, बेशरम बुढ़े, 70-70 साल और 80-80 साल के धूप में सूखे हुए बुढ़े मुस्तफा के पीछे तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया। मुस्तफा के पीछे पीछे बुढ़े बेशरम, पागल आ गया। नौजवान नोकीले पत्थर मार रहे थे और बच्चे तालियां बजा रहे थे। ऐसे मौके पे तुम्हारा बाप होता तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतती, मगर मुस्तफा किसी के बाप नहीं। मां कान मोहम्मद नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो नबी है, खातमुन नबिय्यीन है, वो तुम में से किसी का बाप नहीं है। हजरत एक पत्थर आया, बड़ा सख्त नोकीला पत्थर आया, मुस्तफा जान रहमत के रुखसार पे लगा, इस सामने वाले हिस्से पे लगा। जैसे ही लगा खून का गरम गरम फव्वारा, मुस्तफा जान रहमत के लहू का फव्वारा रुखसार मुबारक से जाहिर हो गया और बस खून बहने लगा। अरे क़यामत ना आ जाए, मुस्तफा का लहू है, कहीं नीचे न चला जाए, धरती फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये आमिना के लाल का और अल्लाह के वजीर आजम का लहू है। हजरत मोहतरम बाहर के लहू जारी रहा। ताइफ के 2 पहाड़ियों के फरिश्ते अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, इनकी हिम्मत, इनकी मजाल, जो आपके पत्थर मारे और लहू लहान कर दे, मेरे पैगंबर एक इशारे अबरू कर दे, 2 पहाड़ियों के बीच में पीस के रख देंगे ताइफ को। मुस्तफा ने उस वक्त भी इरशाद फरमाया था, अपने अपने कामों से चले जाओ, मैं दुनिया में ज़हमत का नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमतों का निशान बना के भेजा गया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुछ नहीं कहा। ऐसा सबर वाला हलीम सीना मुस्तफा जान रहमत का, अल्लाह की मशीयत ही ऐसे ही सीने पे उतारा जाएगा कुरान, और उतार दिया मेरे रब ने कुरान। कुरान से पहले के दिन कारी जुबैर साहब अपनी तकरीर का आखिरी हिस्सा पेश कर रहा हूँ, और हालांकि ये तो कह रहे हैं सुबह तक सुनाते रहो, और मेरी बात भी अभी कंप्लीट हुई नहीं। मैं कुछ और सुनाना चाहता था, मगर कुरान के नुज़ूल के जनाबे वाला वही पहले इब्तिदाई अय्याम ही सुनाकर बात को तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं तो सोच रहा था तुम्हें पूरी बात बताऊं कुरान से पहले की और कुरान के बाद की, अरे 4 घंटे लगेंगे, कहाँ तक सुनोगे तुम, और तुम सुन लोगे तो स्टेज वाले सब चले जाएंगे एक एक करके। हालांकि इन्हें सब मालूम है जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, सब जानते हैं। ये तो बैठे, ये बड़ी बात है। खुश रहो तुम, आबाद रहो। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि सीना ऐसा ही चाहिए था, मशीयत अल्लाह की यही थी, सीना इतने सब्र वाला किसी और का नहीं, मुअल्लिम कायनात का सीना है। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत पे कुरान उतरता है। उतरा कुरान लोहे महफूज में था, शबे कदर में हुजूर के मान सम्मान में पहले आसमान पे आ गया, और पहले आसमान से हुजूर के सीने पे उतरने लगा। 23 साल तक लगातार उतरा। कुरान से पहले की दुनिया अंधेरों में थी और कुरान के बाद की दुनिया उजालों में आ गई। कुरान से पहले मजहबी एतबार से मजरूह थी दुनिया, कुरान के बाद जनाबे वाला मजहबी एतबार से स्ट्रॉन्ग थी दुनिया। कुरान से पहले इल्मी तौर पर लाचार थी दुनिया, और कुरान के बाद इल्मी तौर पर भी जनाबे वाला माला माल थी दुनिया। हज़रात मोहतरम इंशाअल्लाह फिर हम बात करेंगे। आज नहीं बात और अपनी तकरीर को जनाबे वाला आखिरी मोड़ देते हैं। कुरान से अगर सच्ची सच्ची मोहब्बत आपको है और जनाबे वाला आप वाकई समझते हैं, बैठ जा लल्ला, बैठ जा, बैठ जा। अगर आप वाकई समझते हैं कि कुरान लोगों के सीनों में उतरना चाहिए, अगर आप वाकई समझते हैं कुरान वाकई अल्लाह ही का कलाम है, किसी और का नहीं है, और आप जनाबे वाला कुरान का झंडा उठाना चाहते हैं, तो आओ लोगों, आज इस जलसे में अहद करो, इन मदरसों के जलसों में तुम जनाबे वाला मदरसों का साथ दोगे, मदरसों के बाजुओं को थामोगे, मदरसों के सीने से सीना मिलाओगे, शान से शाना, ताकि ये कुरान आने वाली नस्लों के सीनों में मुंतकिल हो सके और दीन का झंडा मजबूत से मजबूत तर हो जाए। 10, 20, 100, 50 से जनाबे वाला कुछ बिगड़ता उगड़ता है नहीं, मगर तुम्हारा समाज बनता है, तुम्हारी दुनिया बनती है, तुम्हारा जहान बनता है। अगर यहाँ खर्च कर दिए, दुनिया में भी आंखों से देख लोगे और हशर में भी और कब्र में भी आंखों से देख लोगे। आज मुझे खुशी हो रही है कि छोटी सी उम्र में इस मदरसे ने इतनी तरक्की कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह 19 तलबा फारिग हो रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता तुमसे कुछ, मगर कारी जुबैर, मुझे आप ये बताइए,
جو حافظ جس کو حافظ فارغ کر رہے ہیں، مدرسہ ایک حافظ پر کیا خرچ کرتا ہوگا؟